నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము 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 మాటలోని ఎరుక మాటలోని ఎరుక మాటలోని సత్యము మాటలోని ఎరుక మాటలోని సత్యము దాని పేరు జ్ఞానము జ్ఞానము నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము 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 మాటలోని ఎరుక మాటలోని ఎరుక మాటలోని సత్యము దాని పేరు జ్ఞానము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము ధ్యానము చేతలోని న్యాయము చేతలోని వినయము చేతలోని న్యాయము చేతలోని వినయము దాని పేరు ధర్మము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము 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 ఆత్మలోని శాంతము ఆత్మలోని అభయము ఆత్మలోని శాంతము ఆత్మలోని అభయ
దాని పేరు మోక్షము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యం దాని పేరు ధ్యానము 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 ధ్యానమే భోగము జ్ఞానమే వైభోగము సత్యమే దైవము 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 ధ్యానమే భోగము జ్ఞానమే వైభోగము సత్యమే దైవము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులో శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము 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 నోటిలోని మౌనము మనసులోని శూన్యము దాని పేరు ధ్యానము 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 अपने ध्यान में रहिए डियर मास्टर्स, डियर फ्रेंड्स। अपने श्वास के साथ रहने की कोशिश करते रहिएगा। श्वास ही हमारा परम मित्र है। क्लासिकल म्यूजिक का एक वर्णम करके गाया जाता है कंसर्ट्स में। तो ये वर्णम के जो स्वरास है बहुत ज्यादा हीलिंग एनर्जीज अपने साथ रखते हैं। तो जो भी सुनते हैं उनके गहराइयों तक शुद्धिकरण हो जाती है। तो जस्ट उस साउंड के साथ कोशिश करिए जुड़ने के लिए। थैंक यू। सरे ग मा पदा नी सा
ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa 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 ni da re sa ni ni da da pa ma ga ma pa da ni da re sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa re ga re sa ni sa re sa ni re sa ni da ni da ni sa ni da pa ma ga ma pa ni sa 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 ni da re sa ni ni da da pa ma ga ma pa da ni da re sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa re ga re sa ni sa re sa ni re sa ni da ni da ni sa ni da pa ma ga ma pa da ni pa ma ga ni da ga da pa ma ga re sa ni sa re ga ma ga ma pa ga ma ni da ni pa da ni sa re sa re ga sa re ga re sa ni da ga re sa ni da pa ma ga ma pa da ni pa ma ga ni da ga da pa ma ga re sa ni sa re ga ma ga ma pa ga ma ni da ni pa da ni sa re ga sa re ga re sa ni da ga re sa ni da pa ma ga ma pa da ni wa na ja ಕ್ಷಿ ರೋ ವೀರ ಹಾಗ ಮೋ ನೆ ವಾ ಸೂದೆಗೆ ಊ ನೀ ತೋಡಿ ವೀಗಿನ ಅಗಬೇಗೆ ನಾಗ ಮೂನ ವೇಲ ಯೋ ಸೌ ದ ರಾಗ ಜೂನಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ni da ni sa ni da pa ma ga re sa re sa pa ma da pa ni da re sa ni da ni da ga re ni ni sa da ni pa da ni sa ga re sa ni da pa
మగరి గమ పదని సరి ని స నిదని సాని ద పమగరి సరి స పామ దాప నిదరి స నిదని దగ్గరి నీరి నీ సదాని పదని స గరి సానిద పాగరి గమ పదని నీ మోహ మాయ నీ రూపగర నీ మోహ మాయ పామగ రే ధామగ రే ని స రే గమా పాద పా మగరి ధామగ రే ని స రే గమా పాదని రూపగరాని మోహ మాయ నీ సరి ని సనిద నిద పమ పాద నిద పద మ పమ గ మ పద ని సని గరి గ సరి ని సారి సరి ని స ధని సాని ద పమ గ మ పద ని గరి ని సరి ని స నిద నిద పమ పాద నిద పద ప మ పమ గ మ పద ని స ని గరి గ సరి ని సారి సరి ని స ధని సాని ద పమ గ మ పద ని గరి ని రూపగరాని మోహ మాయ పాద పా మగ మ ప మగ రే సాని నీ సదని సారి గమ పద పాద పా మగ మ ప మగ రే సాని సారి నీ స ధని సారి గమ పద నీ స్నూపగరాని మోహ మాయ రీ దగరి సనీప ధని సరి సాని ద పమ గామ పదమా పదని పాదని రే సని దని సాని ద పమ గమ పద ప నీదా దని సరి రి గమ గరి సని సరి సని ద సని ద పని ద ప మ గమ పద రి గరి సని ప దని సరి సా
सा नि ध प म ग म प ध म प ध नि प ध नि स रे स नि ध नि सा नि ध प म ग म प ध प नि ध ध नि स रे रे ग ग म ग रे स नि स रे स नि ध स नि ध प नि ध प प ग म प ध नि लू प ग र नि मोह म ग रे लू प र नि ए वनजाक्षी Last 10 seconds, dear friends. धीरे धीरे से अपने हाथों को खोलिए और इन उंगलियों को अपने आंखों के ऊपर रख के, बंद आंखों के ऊपर, और इन उंगलियों को बंद आंखों से एक बार महसूस करिए कितनी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है इन उंगलियों से भी। और धीरे धीरे से अपने आंखों को खोल के इन उंगलियों को देखते हुए बहुत पीसफुली आप सहज स्थिति में अपने भौतिक चैतन्य में आ जाइए। और जो भी ध्यान को कंटिन्यू करना चाहेंगे वो प्लीज अपना ध्यान कंटिन्यू रखें। Over to you, Sharda ma'am. Thank you for the golden opportunity. Thank you all, each and everyone, for giving me this opportunity. Namaste. Thank you. Thank you, Pavni ji. Thank you so much. It's so divine. आपके गाना इतना अच्छा लगा हमें। तो मास्टर्स, धीरे धीरे अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, वरना धीरे धीरे आंखें खोलिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू पावनी जी। तो इतना अच्छा लगा हमें, इतना अच्छा लगा कि उस दूसरे जो आपने सारिगा वो गाना गाए, वो गीत गाए थे, तभी मुझे सीधा एक विजन आई थी कि विभीषण, मास्टर विभीषण एक सितार लेकर वो गा रहे थे, आप नहीं, वो गा रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि विभीषण जी के एक मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि आप इस मैसेज के अलावा मैं हम सब क्या क्या जानना चाहते हैं, आपसे क्या सीखना चाहते हैं। तो विभीषण जी ने उनका इंट्यूटिवली मुझे ये फील हुआ कि उनके बिल्कुल उनके एनर्जीज महसूस हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि मुझे संगीत भी आती है, यू कैन सिंग, मुझे संगीत भी आती है। तब किसी मास्टर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिए। रावण जी भी गाते, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिए रावण जी। लेकिन विभीषण जी बिल्कुल आराम और बिल्कुल रिलैक्स रहकर वो एंजॉय कर रहे थे कि आपके जो गाना आ रही है मैं उनसे सुन रही हूँ। तब उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ होती है, स्किल्स होती हैं, तो तुमको क्या क्या आती है,
किसी को पेंटिंग आती है, किसी को गाना गाते हैं, संगीत सीखते हैं। और हमको एक एक स्किल्स होती हैं, सभी को होती हैं। तो विभीषण जी ये कह रहे हैं, जो भी तुम्हारा स्किल्स है, जो भी तुमको जो भी तुमको आती है इस भौतिक स्तर पर, वो तुम अपना आध्यात्मिकता की बढ़ाने की ओर काम आती है। शायद मैंने आई कन्वेड इट प्रॉपरली। यस यस, वेरी गुड। जो आपने बहुत वॉट अच्छा एवर कन्वे द किया। स्किल्स यू हैव, so it will help you to grow you in spirituality, to grow spiritually. तो ये था उनका अलग सा मैसेज। इस मैसेज के अलावा हमको एक और मैसेज भी आई है। जो भी हमारा ताकत होती है, जो भी हमारा स्किल्स होते हैं, वो सब हमारा आध्यात्मिक स्तर पर भी काम आते हैं। आध्यात्मिक की ओर बढ़ाने के लिए हमको खुद हमें काम आती है। तो ये एक और मैसेज आया था विभीषण जी से। I'm थैंक यू। so grateful to masters विभीषणा, तो ऑल सभी मास्टर्स। और यहाँ जो भी मौजूद हैं, हम सबको पता है कि हम एक एक एनर्जीज हमारा एक बूंद बन जाती है। और एक एक बूंद बूंद इकट्ठा होकर पानी या खुद एक ओशन की तरह, समुद्र की तरह या नदी बन जाती हैं। तो आप सब लोगों को भी मैं ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड हूँ आपके खुद के एनर्जीज देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो फॉर मच। द वंडरफुल मैसेज। थैंक यू। जी भर गया मेरा वो उनके साथ मैसेज सुनने के बाद। थैंक यू सो मच। तो हाँ, आज का मैसेज जो विभीषण जी सी अरुणा मैम के थ्रू आए हैं, वो मैसेज हम की सुनना चाहते हैं कि क्या है उनका संदेश है। विभीषण जी, हम सबको पता है कि विभीषण जी मास्टर रावण जी का भाई है। तो वो विभीषण जी मुझे ऐसा डाउट आया कि विभीषण जी अलग हैं और रावण के परिवार अलग है। तो विभीषण जी ने क्यों चूज किया था, क्यों चुना है रावण का परिवार, एक राक्षस के परिवार में जन्म लेने के लिए क्यों विभीषण जी चुना है। कि हम सबको ना कोई मास्टर्स कितना कठिन की ओर, कितना कठिन परीक्षा लेकर आते हैं। उनका सोल पर्पस इतना लेकर आते कि हम सबको संदेश देने के लिए और हम सबको सही रास्ता दिखाने के लिए। को उन्होंने आगे जाकर ये कहते हैं कि मैं रावण का भाई था। उनको उनको पता है कि एक दिन हम सबको मैसेज देने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा, अरुणा मैम को। लेकिन उन्होंने नहीं समझा कि मैसेज देने के लिए मुझे चुना है आपने। तो इतना इतना ग्राउंडेड है वो मास्टर कि मैसेज देने के लिए, कि मुझे एक मैसेज देना है, कि वो भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनका एम्बिशन नहीं था। क्योंकि वो सब ये सब नहीं सोचते हैं विभीषण जी। बिल्कुल मामूली और साधारण सा व्यक्ति समझते हैं वो अपने आप को। और दूसरे ओर ये कहते हैं कि मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहती हूँ। अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करना सीखे तभी जब आपके आसपास सब कुछ गिर रहा हो, टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, नष्ट हो रहा हो, और जब लोगों को एक दूसरे पर विश्वास ना हो। तो मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी स्थितियां किसी को भी एक अद्भुत आध्यात्मिक आधार प्रदान करती है। हम सोचते हैं कि आसपास जब जब सब कुछ टूट रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा हो, जब सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास के बात आती तो विश्वास पहले हमारे खुद पर होना चाहिए। एक दूसरे से पहले खुद पर विश्वास होना जरूरी है।
जब हम अपने हृदय से, अपने अंदर से किसी इमोशन से नहीं, बल्कि एक कंपैशन से, एक करुणा से, एक प्यार से जब हम बात करते हैं, एक दूसरे से हम बात करते हैं, तो बिल्कुल उस बात का असर उन पर वो ऑपोजिट लोगों पर जरूर होगा। जो जितना भी हम मैसेज देना चाहते हैं, छोटे एनर्जीज काम आते हैं यहाँ। हम सोचते हैं कि बिल्कुल हमारे आसपास सब कुछ टूट रहा हो, तो मास्टर यही करते हैं विभीषणा, कि सब कुछ गिर रहा हो, तभी तभी उसी समय हम आध्यात्मिक की ओर को पकड़ना है, जो सच को पकड़ना है, जो अ, धर्म को पकड़ना है, धर्म को पकड़ना जरूरी है। तो वही धर्म हमारे आध्यात्मिक की वो हमें ले जाती है, सही रास्ता हमें दिखाती है। और आगे ये भी कहते हैं कि सभी बाई अलग हैं और ये अलग हैं। बुद्धि को देख, बुद्धि से और उनके सोच विचार से रावण और उनके भाई सब लोग, और कुंभकर्ण जो है, रावण भी, सब लोग अलग हैं और विभीषण अलग है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके उनके मानवता, उनके चुनौती है कि वो चैलेंज लेकर ये आए हैं, उस जन्म उन्होंने लिया है चैलेंज लेकर कि मानवता की मजबूती से पकड़ना और एक आम व्यक्ति के बुनियादी नैतिक मूल्यों का पालन करना। नैतिक मूल्यों का हमें ये मूल्य बार बार आ रही है, बार बार मैसेज में आ रही है। स्टार्टिंग आदि शंकरा जी के मैसेज से लेकर बार बार ये आ रही है, मूल्य, मूल्य को पकड़ना। तो आदि शंकरा जी परिवार और व्यक्ति और जॉइंट फैमिलीज के मूल्यों के बारे में बताया है, कि सोसाइटी के मूल्यों के बारे में बताया है। उसी मूल्यों ने रावण जी ने नहीं माना, और रावण जी ने जब नहीं माना तो उनका सारा राज्य और उनका जन्म भी उस जब उनको मूल्य का खातिर नहीं किया रावण जी, तब खुद उनके लाइफ को क्या किया कि बर्बाद में नहीं कहती हूँ, लेकिन जो अहंकार से उन्होंने नहीं सही रास्ता नहीं पहचाना। और जब विभीषण जी आए हैं अब, तो विभीषण जी उन मूल्यों का खातिर किया था। एक स्त्री को कैसे इज्जत देना है, तो भाई एक स्त्री ही नहीं, इसीलिए रावण जी को कहते हुए आए हैं कि भाई, यहाँ ये एक स्त्री को बंद रखना अच्छी बात नहीं है, इज्जत देना चाहिए। और बिल्कुल स्त्री ही नहीं, उनके परिवार को भी मूल्य उन्होंने रखा। इसीलिए जब भाइयों ने अलग रास्ता चुना, एक एक भाई के होने के नाते उन्होंने परिवार को मूल्य रखा, परिवार के मूल्य भी उन्होंने माना। और ये भाई जैसा भी हो, उनको इज्जत दिया था, रावण जी को इज्जत दिया। और आगे ये भी कहते हैं कि मूल्य और अनुशासन से दूर नहीं जाना चाहता था वो, बिल्कुल एक डिसिप्लिन, एक प्रिंसिपल्ड, उन्होंने एक अनुशासित व्यक्ति था विभीषण जी ने, बिल्कुल एक डिसिप्लिन और रेस्पेक्टेबल लाइफ उन्होंने लीड किया था। आगे जाकर ये भी कहते हैं कि उनको कोई उन्होंने जल्दी में किसी कोई भी निर्णय नहीं लिया था। जब भी हम जल्दीबाज में होते हैं, उस उस टेंशन में, उस पैनिक मूवमेंट में, या कुछ उस हरी में क्या होते हैं, उस जल्दबाज में हम जो भी हम रास्ता चुनते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सही नहीं होता है। तो महावतार बाबा जी का एक मैसेज यहाँ याद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो भी जब भी तुम निर्णय लेते हो, तुम्हारा इमोशंस, तुम्हारा भाव, सोच विचार बिल्कुल बैलेंस और नॉर्मल होनी चाहिए। तभी डिसीजंस लेने में तुमको एनर्जीज काफी रहती हैं और सही डिसीजन ले पाते हो, सही निर्णय ले पाते हो। तो इसीलिए
उन्होंने यहाँ भी उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किसी का निर्णय उन्होंने निर्णय नहीं लिया और जल्दबाजी नहीं किया उनके जीवन में। और यह कहते हैं कि महत्वाकांक्षी भी नहीं थे, वो एम्बिशियस भी नहीं थे। तो प्रिंसिपल लाइफ उन्होंने जिया और उन्होंने कहा कि विभीषण जी कहते हैं कि हर सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में प्लान कर चुका है। उन्होंने कहा कि सब कुछ योजना की है, प्लान किया है। पहले सेंटेंस में ये कहते हैं कि मेरा जीवन सब कुछ प्लान्ड है, मैंने सब कुछ योजना की है। और दूसरे सेंटेंस में और दूसरे ये भी बात कह रहे हैं, मैं एम्बिशियस नहीं था, कि महत्वाकांक्षी नहीं था। तो ये दोनों क्या आपको अलग सा दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो पहले सब कुछ प्लान्ड है और एम्बिशंस नहीं थे, तो ये दोनों एक व्यक्ति में कैसे होती है? तो जहां तक मैंने समझा, मुझे समझ में आया कि हाँ, सब कुछ उन्होंने प्लान किया है, लेकिन मटेरियलिस्टिक प्लान नहीं था। तो भौतिक जीवन के भौतिक विषय पर उन्होंने एम्बिशियस नहीं थे कि मुझे आ, रावण जी का साथ देना है और बाकी सब राज्यों का पालन करना है, कुछ हासिल करना है और इतना धन मुझे या वेल्थ या मुझे पाना है। इन्होंने ये सब नहीं प्लान किया था, इनका प्लानिंग अलग था। इनका प्लानिंग था, इनको ने योजना की, बिल्कुल अपना जीवन और आध्यात्मिक जीवन का प्लानिंग की है उन्होंने। उस प्लानिंग में उन्होंने जो मूल्य है, जो डिसिप्लिन लाइफ है, इतना चैलेंज को अपने रखने के लिए, उस रास्ते पर होने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है। और आगे ये भी कहते हैं कि क्या कहा जाता सकता है, एक निश्चित स्तर पर मुझे अपने सभी परिवार को संबंधों को त्याग देना पड़ा, कि जिसने मुझे आध्यात्मिकता की ओर जाने में मदद की है। जो उन्होंने सभी परिवार को त्याग देना पड़ा, वो छोड़कर जाना पड़ा था, कि एक पेशेंस के लिए भी कुछ हद होती है। भी बाबा जी भी यही कहते हैं, पेशेंस के कुछ हद होते हैं। जब हमारे खुद की इज्जत या खुद का प्लेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जब हमारा मूल्य, हमारा खुद की रेस्पेक्ट जो जहां नहीं होती है, तब जाकर आवाज उठाना पड़ती है, हमें आवाज उठाना है हमें। जहां हमारे डिसरेस्पेक्ट हो रही है, वहां अहंकार से नहीं, ये क्लियर होना है, वहां अहंकार से नहीं, वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बार बार एक विषय पर हमको उंगलियां दिखा देते हैं, हमको बात करनी पड़ती है, वहां हमें बात करने हैं, हमारा आवाज उठानी चाहिए। तो भी उन्होंने कहा कि पेशेंस को भी जब उन्होंने त्याग देना पड़ा, कि मैं एक सामान्य व्यक्ति था, कभी किसी हिंसक विस्फोट उन्होंने नहीं किया। जब रावण जी ये सब कर रहे हैं, उनके परिवार सब लोग हिंसा के मार्ग पर हैं, तब जाकर उन्होंने धर्म का मार्ग चुना। जब धर्म होते हैं, धर्म का मार्ग में आवाज हमको उठाना चाहिए, कि धर्म को रक्षा करने के लिए। खुद की रक्षा माने धर्म की रक्षा, खुद की रक्षा की सेल्फ रेस्पेक्ट माने धर्म का। जब उन्होंने ये देखिए कि सब लोग अलग सा है, जब ये एक हिंसा मार्ग में है, उनको ने उस सोसाइटी को या जो यूनिवर्स के जो रूल्स हैं, कुछ विषय होते हैं, वो सब लोग उन्होंने नहीं माना है। खुद अपने सोच को, अपने इच्छा पर वो परिवार है। लेकिन विभीषण जी ने धर्म का मार्ग चुना और धर्म के लिए आवाज उठानी पड़ी, धर्म के रास्ता चुनकर धर्म के लिए उन्होंने परिवार छोड़ना पड़ा।
शायद मैं आपको पॉइंट लेकर आ रही हूँ कि यहाँ डिसरेस्पेक्ट किसी को हो रहा है, इस डिसरेस्पेक्ट हो रहा है कि सही नहीं था, वो सही जो सही नहीं है हमको आवाज उठाना है। पत्री जी को देखिए, तो पत्री जी को हम हमारे गुरु जो एग्जाम्पल हम लेते हैं, उन्होंने कहा कि एनिमल्स को या जो जानवर को हार्म करना मना है, हार्म नहीं करना है। उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने खुद अपने परिवार को छोड़ा कि उन्होंने सही धर्म, उन्होंने उनके सही भाई को उन्होंने छोड़ा। पत्री जी ने माना नहीं, क्योंकि उनके भाई, खुद पत्री जी ने कहा कि उनके भाई अलग सा है। अलग सा मतलब वो एनिमल्स की ओर उनका उनका सोच अलग था, तो इसीलिए उनका सदी भाई को पत्री जी ने छोड़ा और आवाज उठाई, जो धर्म है वही आवाज उठाई कि हिंसा नहीं होना है, वो जानवर भी हम जैसे भी हैं, हम जैसे हैं। तो अभी इसीलिए विभीषण जी ने उनके परिवार को छोड़कर धर्म का मार्ग जो है और आध्यात्मिक वो डिसीजन, वो उन्होंने जो भी सोचा है, उनके धर्म के मार्ग को आगे जाने के लिए उनको मदद मिला। जब हम आध्यात्मिक का ओर कहाँ जाते हैं दोस्तों, जब हम धर्म का रक्षा करते हैं, जब सच का सामना करते हैं, सच्चाई में हम जब रहते हैं, तब जाकर आध्यात्मिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आत्मा उन्नत के स्थल पर जाती है। और ये भी कहते हैं, मैं यहाँ दूसरों को यह सिखाने के लिए अतीत के प्रतीक के रूप में कि हम सभी को आध्यात्मिक की ओर जाना है, सभी को जाना है। मैं यहाँ एक मुझे अपनी खुद की एक्सपीरियंस याद आती है। जब मैं मेडिटेशन की जर्नी में नई नई आई थी, कुछ ही दिन हुए थे, तब जाकर मुझे एक सपना आया। जो उस सपने में एक आत्मा के लोग हैं वहाँ, एक मास्टर जी रहते थे। वो मास्टर बिल्कुल ब्राइट हैं, बिल्कुल कांति कांति में थे। वो शरीर मुझे नहीं दिखाई दिया। तब जाकर उन्होंने मुझे बुलाया, कुछ कुछ बीज मेरे हाथ में रखा और कहा था कि, और कहने लगा कि इस थल पर सभी को आना चाहिए। इस थल का मतलब है आध्यात्मिक की ओर सभी को आना चाहिए। कुछ लोग जल्दी आते हैं, कुछ लोग इसी दिन आते हैं। इसी दिन का मतलब है इसी जन्म में आते हैं। कुछ लोग कहीं जन्म लेते हैं, कभी जन्म लेना पड़ता है उनके, लेकिन सभी आत्मा को कि एक एक आत्मा को भी यहाँ आना जरूरी है और आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तब वो मैसेज मुझे आज याद आ रहा है। विभीषण जी कहते हैं, हम सबको आध्यात्मिक की ओर जाना है, और वो आध्यात्मिक की ओर हमारे आत्मा से एक होने। आध्यात्मिक का मतलब है पूजा पाठ नहीं, उस एनर्जी से, उस डेटी से, उस महाचैतन्य से एक होने के का मार्ग, वो है ध्यान का मार्ग और आनापाना सती, सांस से एक होने का, सांस को महसूस करते हुए अंदर जाने का, खुद के अंदर जाने का, वही आध्यात्मिक मार्ग है। और आगे ये भी कहते हैं कि दूसरों ने कि यह सीखने के लिए अतीत की प्रतीक के रूप में आध्यात्मिक मार्ग का चुना। हम सभी भौतिकवाद के शरीर होंगे, जो कि एक बुलबुले, एक बबल की तरह है, एक बबल की तरह है। क्या है बबल की तरफ? कि जो भी ये पारिवारिक हैं, जो भी ये भौतिक जीवन में कुछ हासिल करना, एक भौतिक जीवन से खुशी ढूंढना, वो सब एक बबल की तरह होती है, एक बुलबुले की तरह। ये टूट जाती है, एक ही क्षण में टूट जाती है। लेकिन जब असली संतोष, असली आनंद जो हमारे आत्मा से मिलती है, वो हमेशा हमारे आत्मा में भी निक्षिप्त होती है। जब एक एक एक
संतोष या एक आनंद जब भौतिक से कुछ चीज से हासिल होने में, कुछ चीज को हासिल होने से जब आनंद आती है, जो हैप्पीनेस आती है, वो बुलबुले की तरह है। लेकिन जब एक आत्मा की ओर, आत्मा से आनंद आती है, वो परमानेंट है, वो बिल्कुल हमारे आत्मा में निक्षिप्त होती है। और हमको ये भी संदेश देते हैं, अपनी अपनी पीढ़ी जो है वो, जब जितना भी हम सोचते हैं, लेकिन वो अधिक है, सामना करना इतना आसान नहीं है। वो कंपेयर कर रहे हैं उनके समय में और अब। इस उनके समय में आध्यात्मिक आसान था कि गुरु रहते हैं, उनके मदद मिलती है आसानी से। लेकिन इस कलयुग में आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक की बढ़ाने का और सिखाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एक कठिन है, वो कहते हैं। लेकिन कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम कर पाते हैं, हम कर सकते हैं। और ईमानदारी ईमानदारी से सलाह है कि उन्होंने कहते हैं कि आप अपनी बेहतरी और अपने आसपास के सभी लोगों की बेहतरी के लिए आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाइए। जो हम आध्यात्मिक का रास्ता चुनते हैं, वो बिल्कुल हम बिल्कुल एक केवल मुझे ही एक उन्नत लोग जाना है या मुझे ही आध्यात्मिक की जाना है, कि सीखना है, ये सब नहीं। उन्होंने कह रहे हैं कि केवल तुम्हारे ही नहीं, बाकी सब लोगों को भी तुम्हारी आध्यात्मिकता उपयोग होना चाहिए। So we have to help ourselves and we have to help others too. बिल्कुल पत्री जी भी यही कहा ना कि आप सब लोग ध्यान करें और ध्यान को सभी लोगों को बांटे। अपने जो एक्सपीरियंस आए हैं वो सभी को अपना खुद के एक्सपीरियंस बताइए कि बाकी सब लोग अपनी आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे और वो सब स्पिरिचुअलिटी से आगे जाएंगे। और आखिर में ये कह रहे हैं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति था। उन्होंने अपने आप को एक सामान्य, जैसा कि हम हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भी आप ही तरह हूँ। और आज मैं भौतिक शरीर में 7वें शरीर की चेतना का स्वामी हूँ। हमारे 7 शरीर होते हैं, 7 बॉडीज। उस 7th बॉडी कॉन्शियसनेस, विभीषण जी ये कह रहे हैं कि मैं एक 7th बॉडी कॉन्शियस में हूँ। पहले सेंटेंस में पहले ये बताया कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। एक सामान्य व्यक्ति 7th बॉडी कॉन्शियस को, एक 7वें शरीर की कॉन्शियस को उन्होंने हासिल किया, उन्होंने पहुंचा। कैसे? उन्होंने ध्यान करते हुए अपने आप को धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में रहते हुए उन्होंने ये हासिल किया। 7th बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होती है कि सभी चीज इस यूनिवर्स में, इस विश्व से एक होने का, वो है 7th बॉडी कॉन्शियसनेस, वननेस। उन्होंने ये हासिल किया। वननेस है एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। तब वननेस में होते हैं, सब चीज एक ही नजर से देखते हैं, वहां जजमेंट नहीं होती है। तो यही था। तो आप भी, उन्होंने आखिर ये कह रहे हैं, थोड़े और सच्चे सच्चे प्रयास से आप भी कुछ ही समय में मेरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम भी एक विभीषण की तरह है। विभीषण जी भी हमारे तरह जन्म लिया है। उन्होंने खुद अपना डिजाइन लिया है। और जो भी हम वहाँ डिजाइन करते हैं, एक आत्मा की तरफ, एक आत्मा की रूप में हम सब कुछ सोच समझ कर हम डिजाइन करते हैं, खुद की लाइफ चुनते हैं। जब जन्म लेते हैं, सब कुछ भूल जाकर इस भौतिक दुनिया में रहकर, इस भौतिक विषय में ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हुए
किस विषय पर जन्म लिया है, किस लिए जन्म लिया है, ये सब भूल जाते हैं हम। लेकिन विभीषण जी जितना भी उन्होंने सोल लेवल में प्लान किया है, वो रास्ता, वो कठिन समय, वो चैलेंजेस, सब कुछ उन्होंने उन्होंने जन्म लेकर भी वो उन्होंने पकड़ कर रहा था। और वो पकड़, जब वो चैलेंजेस हमने सामना करते हैं, तब जाकर आध्यात्मिक का कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चैलेंजेस हमने चुना है दोस्तों, तो वो चैलेंजेस का रास्ता है, वो सॉल्यूशन भी हमारे अंदर होते हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं, तभी सभी प्रश्नों का हमारा रास्ता भी हमको दिखाई देते हैं। तो थैंक यू सो मच, जितना भी मैंने समझा वो आपसे शेयर किया। आपको जो भी एडिशनल जो भी सोच आती है, आपको सोच क्या है, वो हम अनम्यूट कर आप कर सकते हो, प्लीज। Once again, excellent session, Sharda garu. Thank you so much. थैंक यू भावनी जी। बहुत ही पावरफुल सेशन था। जी थैंक यू। मैम आपका म्यूटेड है। जी सुनीता अग्रवाल जी, थैंक यू नमस्ते। श्रावणी जी। नमस्ते आत्मवंदन। आपको बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हर चीज का सॉल्यूशन यही है कि हम कंटिन्यूअसली आध्यात्मिक रास्ते पे चलते रहे और ध्यान करते रहे, और साथ साथ अपने अलावा जो भी हमारे इर्द गिर्द है, जो भी हमारे संगी साथी हैं, उनको भी इसी अवेयरनेस में लाने की कोशिश करें, ध्यान के साथ जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल बात। थैंक यू सो थैंक यू मच। सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा कि हर परिवार में सब लोग होते हैं, सब लोग थैंक यू सुनीता जी, सब लोग ध्यान के मार्ग में नहीं होते हैं। नहीं, तब जाकर हमें हमें बिल्कुल एक विभीषण की तरह हम रह जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे हमको कुछ बिल्कुल टफ सिचुएशंस रहते हैं, और ध्यान करना भी कुछ लोगों को मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही बात। बाहर वाले आपकी बात मान लेते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं, जी बट घर के अंदर लोगों को कन्विंस करना कि इतने टाइम बैठिए, ध्यान कीजिए, ये बुक पढ़िए, ये बात समझिए, ये बहुत टफ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है ये चीज। जी जल्दी से घर वाले कन्विंस नहीं होते हैं कि ठीक है आप कर रहे हो, आप करो। बट ये भी बोलते हैं कि अगर घर भर में एक भी ध्यान नहीं है तो उसकी ऊर्जा सबको कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंड देती है, कहीं ना जी कहीं उसका असर सब पे आएगा, भले देर से आएगा, बट इट विल हैपन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर किसी और को शेयर करना है तो अनम्यूट कीजिएगा मास्टर्स। नहीं, ओके, बिल्कुल परवाह नहीं, इट्स ओके देन। जरूर बात करिए फ्रेंड्स, बिकॉज आपका विजडम शेयरिंग बहुत कीमती है। तो so, इतने में मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। जी शारदा गारू, विभीषण जी ने ये बोला कि कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको मतलब तोड़ दे रही है सिचुएशंस, मतलब इर्द गिर्द सब कुछ पीसेस पीसेस हो रही है और नष्ट हो रही है, सब कुछ बहुत ज्यादा विध्वंस हो रही है आपके इर्द गिर्द, फिर भी आपको स्थिर रहना है, हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ते जाना है, अपना रास्ता को क्लियर रखना है। तो वो क्लियर रखने के लिए भी ध्यान करना पड़ेगा।
क्योंकि उस ऐसे सिचुएशंस में हमारा ध्यान से जो हम इनर पीस पाते हैं वही काम आता है, और इनर स्ट्रेंथ तभी बढ़ती है ऐसे सिचुएशंस में खड़े रहने के लिए, एंड तभी हमारा रियल में हम क्या कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं ये पता भी चलता है जब ऐसा कठिन हालात आ जाते हैं तो। और ये अपना धर्म को फॉलो करना मीन्स उन्होंने भौतिक धर्म भी निभाया, बहुत कोशिश किया कि उनके जो पॉजिटिव थिंकिंग है एंड किसी को हार्म नहीं करके अपना जीवन को शांत तरीके से जीने की जो अंदाज है वो सभी को बताने के लिए भौतिक धर्म में भी उन्होंने पूरा कोशिश किया, मतलब अपने परिवार वालों को कोशिश जरूर किया। फिर जब वो नहीं माने और उनका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ता गया और कंप्लीटली उनका पाप अलग हो रहा है, तब जाके उन्होंने अपना जो आध्यात्मिक धर्म है उसको निभाने के लिए फैमिली छोड़ के बाहर आ गए। तो मुझे क्या लग रहा है, ये आध्यात्मिकता मतलब पूरा लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल किस तरीके से रखते हैं, और आध्यात्मिक अलग नहीं है और जो भौतिक जीवन जो हम जी रहे हैं वो अलग नहीं है, दोनों कंबाइंड है। एंड जो भी व्यक्ति भौतिक जीवन में खूब काम करते हैं, अपना जिम्मेदारियां समझते हैं, हर एक रिश्ते को सुंदर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वही व्यक्ति जो कोशिश करते हैं, जैसा कि विभीषण जी ने कोशिश किया, पूरी कोशिश किया, वही व्यक्ति आध्यात्मिकता में कदम रख पाएंगे, मतलब स्पिरिचुअली वो इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअलिटी में वो है, इसका ये क्लियर है। यही पत्री जी हमेशा समझा रहे थे। तो यही संसार में निर्वाण एंड मध्य मार्ग, सो मध्य मार्ग में पूरी तरह उन्होंने रहने की कोशिश किया विभीषण जी। एंड आपने जो बोला कि हम एक साधारण व्यक्ति थे और ये साधारण व्यक्ति वो असाधारण भी नहीं है, मीन्स वो जो प्रॉपर स्पिरिचुअल पाथ है, सेवेंथ बॉडी कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस पाना, तो हम सब में है, पर वो अवेयरनेस हमको होना चाहिए कि ये सेवेंथ बॉडी की अवेयरनेस तक हमको अपना रास्ता तय करना है। एंड हमारे इर्द गिर्द सारे मास्टर्स आके हेल्प करेंगे, जैसा कि आज अभी विभीषण जी हमारे साथ रह के वो सिखा रहे हैं हमको। हाँ, अरुणा मैम ने ऑटो रेटिंग के पद्धति में कब 1994 में उन्होंने मैसेज लिया, पर ये बुक अभी रिसेंटली आई है बाहर। क्यों? अभी एक ग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म, एक एनर्जीज रेडी है, तैयार है अर्थ पे कि उन मास्टर्स की एनर्जी अब हम लेने के लिए उस स्तर पे पहुंचे हैं। सो हम आप म्यूट हो गए पावनी जी। डिस्कनेक्ट हो गया था एक सेकंड के। सो यस, हमारा भी अपने आप को बधाई देना है कि हम सुन पा रहे हैं ऐसे पावरफुल मैसेजेस को। जो भी 40 मास्टर्स का मैसेजेस पढ़ेंगे और अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हर क्षण कोशिश करेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए सर पत्री जी चाह रहे थे कि हर एक व्यक्ति ये पढ़े, तो वो रियली रिक्वेस्ट करते थे। मैं अपने आंखों से देखा था ये दृश्य, फिजिकली इन पर्सन मैंने देखा था कि कैसे वो अंदर से वो चाहत सर का है कि हम सब पढ़ें, हम सब ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें। एंड he was feeling so happy for that this book has come out. So प्लीज आप शारदा मैम एक्सेलेंट सेशन आप कर रहे हैं, रियली आई ट्रूथफुली सेइंग, पूरा 100%
ही है फाइनल, तो इसीलिए 100% बोल रही हूँ। तो 100% आप अपना जी जान लगा के वो पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ द बुक। आपने पहचान लिया कि ये कैसा बुक है जो जीवन पूरा बदल देगा। आप जो भी ये करेंगे, प्लीज अपना बुक खरीद लिए और मैम से पहले ही यहाँ आने, मैम के आने से पहले ही ये पढ़िएगा। और इस डिस्कशन में, सज्जन सांगत्य में प्लीज भाग लीजिए। जब आपके मुख के द्वारा कुछ शेयरिंग आता है तो कई सारे जीवनों का ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना पूरी तरह है। तो जब भी हम इस ऐसे सज्जन सांगत्य में भाग लेंगे, यहाँ जहाँ विभीषण, मास्टर विभीषणा जैसे एनर्जीज यहाँ मौजूद है हमारे साथ, we bow down to him for whatever work he has done, and to all the 40 masters, and हम सब उन मास्टर्स के साथ जुड़ के ये सज्जन सांगत्य में भाग लेंगे। ये प्रार्थना है, अभी शुरुआत में ही है। तो ये पहले जो 2-3 मैसेजेस कंप्लीट हो गया वो भी पढ़िए, क्योंकि एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज जो आता है एक सीढ़ी चढ़ना जैसा है। सब लोग, सब मैसेजेस कनेक्टेड है। एंड मैं खुद अपना अनुभव से बता रही हूँ कि मेरा जीवन में बहुत मैं वो फील कर पा रही हूँ कि पहले की पावनी क्या है, अब पावनी क्या है, वो फील कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस बुक। सो प्लीज आप खरीदिए। इंग्लिश में है, हिंदी में है, तेलुगु में भी है। तेलुगु में महाज्ञानम करके है, हिंदी में शारदा मैम बुक का नाम कुछ आइडिया है क्या? नहीं। सही पता करेंगे। एमबी पब्लिकेशंस 40 का है। मास्टर्स के संदेश करके है मेरे ख्याल से, 40 मास्टर्स के संदेश। अच्छा, क्योंकि तेलुगु में नाम बदल दिया इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी जब तेलुगु बुक, मेरे पास तेलुगु भी है, इंग्लिश भी है, 2 बुक्स खरीदा ताकि मैं सही से समझूं। तो अगर हो सके तो 2-2 लैंग्वेजेस में खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम रेट में दे रहे हैं। पर महाज्ञानम करके बोला, रेवती मैम जो तेलुगु में ट्रांसलेट किया, वो एक ग्रेट मास्टर है। सी अरुणा मैम का ऑटो राइटिंग मैसेजेस को रेवती मैम ने, जो न्यू एनर्जी करके आप सब पढ़ रहे हैं ना, अभी आप कर रहे हैं ना वर्कशॉप्स, ये न्यू एनर्जी किसने ट्रांसलेशन किया ओरिजिनल का? ये रेवती मैम ने, बहुत कई सालों पहले, 20-25 साल से ज्यादा है शायद। उस वक्त बीएसएम के शुरुआत के टाइम पे सर उस मैडम को बुला के आपको तुरंत ये न्यू एनर्जी एसेंशियल वाला बुक्स ट्रांसलेट करना है बोला। तो ऐसा ग्रेट मास्टर है, उन्होंने ये 40 मैसेजेस का ट्रांसलेशन तेलुगु में किया, तो उसका नामकरण किया महाज्ञानम। मैं हैरान होती, 40 मास्टर्स नहीं है, मैं गलत बुक खरीद रही हूँ ऐसा सोचा था, बट वाकई में महाज्ञान है ये। 40 मास्टर्स का बुक महाज्ञानम है रियली। तो हम लोग एक एक मैसेज पढ़ के हम अपने लाइफ में जो हो रही है उसको, और जो मास्टर, जो अभी सपोज मास्टर विभीषणा, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस सुन के समझते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करके हम अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है वो नोट करके कैसे विभीषण जी बोल रहे हैं और हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे किया, और करने के बाद क्या हासिल किया, कैसे रिजल्ट्स हम पाए हैं। तो किसी और को बोला तो उन्होंने कैसे अपने जीवन को बदला, ये सब नोट कर सकते हैं और अपना खुद का एक डायरी बना सकते हैं। सो हम श्योरली देखेंगे कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा। एंड थैंक यू एंड सॉरी ज्यादा टाइम लेने के लिए शारदा मैम, बिकॉज आप इतना सुपर्बली कर रहे हो ये सेशन, तो मुझे बहुत ही फीलिंग हुआ कि सब पार्टिसिपेट करें आपके साथ, जो बहुत खिलकर आएगी ये सेशन। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब भी मेडिटेशन हो रहा था तो पावनी के सॉन्ग के साथ लगा कि कुछ सेकंड्स का ध्यान हुआ, मतलब वो 40 मिनट्स ऐसे निकल गए कि लगा कि कुछ सेकंड्स का। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं बैठी। अंजना आज आई हुई है, और अंजना और सृष्टि मैम, क्यों कोई शेयर नहीं कर रहा है, मैं वो बता पा रही हूँ कि वो दोनों ही ऐसे बेहोश अवस्था, आप समझ सकते हैं कि दोनों ही वो इसलिए मुझे लगता है ना कि एनर्जी इतनी ज्यादा होती है
कि लोग उठ ही नहीं पाते। वो जी। इतनी तेज आवाज़ आ रही है फ़ोन पे, अंजना के फ़ोन पे, और फिर भी वो दोनों ऐसे लग रहा है कि हाँ, है ही नहीं। तो मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ कि एनर्जी बहुत हाई है। बुक मैंने ले ली है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर पहले वाव! पढ़ कर ही आऊँगी। थैंक यू। Thank you so much for no for getting book आदित्य जी। हाँ। दिस इज ये मुझे ऐसा लगा कि ये 40 मास्टर्स का मैसेजेस 40 बार हमें पढ़ना है। हुँ, एक एक मैसेज 40 बार, क्योंकि हुँ, मुझे मुझे ना जब मैंने पहली बार मैं पढ़ी थी पूरी बुक, अभी तक मैं आप ही के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, तब एक मैसेज मैंने पढ़ा, तो दूसरे दिन वही मैसेज मैंने पढ़ा, तो कुछ कुछ चेंजेस हैं। मैं सोचने का तरीका जो है वो अलग सा एंगल मुझे दिखाई दे रही है। तो इसीलिए जब हम 40 में एटलीस्ट ये 40 क्यों है नंबर, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे एक एक मैसेज शायद 40 बार हमें पढ़ना है। तो 40 हुँ, हुँ, तब जाकर हमारे अंदर जो है हमारे बॉडी में एक एक सेल में एक एक कण में वो मैसेज क्या है वो हम ले सकते हैं। बिल्कुल हमको बड़ी हेल्प करेगी भौतिक एक और जीवन। छोटा एक्सपीरियंस है मैम, जी। कि पल्लवी मैम का एक सीरीज़ चला पीएमसी हिंदी पे, सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म, यात्रा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सूक्ष्म जगत की यात्रा। हाँ। तो जब वो करती थी ना, तो मैंने 2-3 एपिसोड्स उसके देखे थे, तो उनके ना पीछे एक कुछ बुक शेल्फ सा था, और उसपे ये बुक हेज़ी सा, मतलब दिखता ही नहीं था कि बुक का ऊपर का प्रिंट क्या है। और मुझे उस सेशन में ना सारा काम छोड़कर उस बुक को ही देखने में, आप कभी देखेंगे ना तो आप फ़ील करिएगा, तो वो बुक का ना ऐसे, मेरा पूरा ध्यान उस पे रहता था कि वो क्या है, मुझे वो बुक चाहिए। हम्म, जब मैंने 40 मास्टर्स बुक लिया, तो मुझे समझ आया कि यही प्रिंट, मतलब उसमें दिखता भी है, नाम भी नहीं दिखता है, एक ज़रा-सा ग्रीन फ्लावर सा दिखता है बस। हम्म। तो वो पहली बार वंडरफुल। जैसे मैंने वो फ़ील किया, अट्रैक्ट करना, बुक अट्रैक्ट करना या क्रिस्टल अट्रैक्ट करना, क्या कहते हैं वो फ़ील किया। Wow, it's a wonderful what you say experience Aditi जी। No, जैसे भी वो बुक हमें चूज करेगी, हुँ, हुँ, बुक हमें चूज करेगी, ये इट्स ए ग्रेट फीलिंग। तब जब हम कुछ चाहते हैं, वो बुक जब हमको आती है हमारे हाथों में, वी कांट एक्सप्रेस दैट इमोशन, वी कांट एक्सप्रेस दैट एक्सपीरियंस। ये 40 मास्टर्स इंग्लिश बुक मुझे आया इसी तरह आया है, बिल्कुल सरप्राइज था, सरप्राइजिंगली ये आया था। तो पढ़िएगा प्लीज, और पढ़कर जी, आपको जो भी आती है मन में और जो भी समझ में आती है वो शेयर कीजिएगा। और जी, पहले मैसेज से पढ़िएगा। और हुँ, नेक्स्ट सेक्शन विभीषण जी के बाद आती है अश्वत्थामा। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है अश्वत्थामा का, और बिल्कुल लेंदी मैसेज है अश्वत्थामा का। हमें 2 सेशंस लगेगी अश्वत्थामा के जी। ओके, कोई विभीषण की तरह हम जाएंगे, जल्दबाजी में नहीं हम करेंगे। विभीषण की तरह हम जाएंगे, धीरे धीरे हम जाएंगे, प्लान करते हुए हम आगे जाएंगे। ओके, सो जी थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू अदिति जी, थैंक यू। अगर कोई थैंक यू मैम। है शेयर करने के लिए तो ओके, वरना हम थैंक यू शारदा फिर गारू, मिलेंगे। थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच। तो 1 मिनट मैं लेना चाहती हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।